ہائی کورٹ نے فورن ایکسچینج ایکٹ مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر نپٹا دی۔ عمران خان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی ہے، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے این اے 237 میں ضمنی انتخاب کے نتائج کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی رہنما حکیم بلوچ کی کامیابی کو چیلنج کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما علی زیدی نے درخواست دائر کی ہے۔ عمران خان کی افسانوی کہانیاں وقتی طور پر مشہور ہو رہی ہیں۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ہم نے کوئی ریلیف نہیں لیا، مریم نواز قانون کے تحت بری ہوئی ہیں، میں 2 سال سے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہوں۔ سانحہ کارساز دہشت گردی کا بڑا واقعہ تھا۔ سعید غنی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنی قیادت کے ساتھ محبت اور عقیدت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس واقعے میں 150 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ سانحہ کارساز کو گزرے آج 15 سال مکمل ہو گئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے سانحہ کارساز کے بہادر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج بے نظیر بھٹو اور ان کے ہزاروں جیالوں کے خون سے جمہوریت قائم ہے۔ اور ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ گئی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے بیک ڈور مذاکرات ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں، جتنی مشکل سے نواز شریف باہر گئے اتنی آسانی سے واپس نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں صفا ریاض۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فورن ایکسچینج ایکٹ مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر نپٹا دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمے کی سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی ہے، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ دوران سماعت وکیل نے کہا کہ عمران خان نے کل ٹرائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پھر تو یہ کیس غیر مؤثر ہو گیا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ 2 پوائنٹ عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر عدالت فیصلہ کر دے۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے عدالت میں معاملہ زیر التوا ہے۔ جسٹس محسن اختر نے ٹرائل کورٹ سے رپورٹ مانگی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اسی قسم کے کیس میں شریک ملزم کا کیس زیر التوا ہے تو وہ معاملہ تو حل ہو جائے گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ معاملہ اسپیشل جج سینٹرل نہیں بلکہ اسپیشل جج بینکنگ کا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت سے آرڈر کی درستگی کی استدعا کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ ایک اور عدالت میں زیر التوا ہونے پر درخواست نپٹا دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فورن ایکسچینج ایکٹ مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر نپٹا دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمے کی سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ دوران سماعت وکیل نے کہا کہ عمران خان کی کل ٹرائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پھر تو یہ کیس غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ 2 پوائنٹ عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر عدالت فیصلہ کر دے۔ جسٹس محسن اختر قیانی کی عدالت میں معاملہ زیر التوا ہے۔ جسٹس محسن اختر نے ٹرائل کورٹ سے رپورٹ مانگی ہے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 237 में ज़िमनी इंतखाब के नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी रहनुमा हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज किया है। PTI के मरकजी रहनुमा अली जैदी ने दरख्वास्त दायर की है। PTI रहनुमा ने दरख्वास्त में कहा कि NA 237 में बदतरीन धांधली की गई, हल्के में PP कारकुनों ने जाली वोट डाले। अली जैदी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि हल्के में धांधली से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की, धांधली और दीगर शिकायत पर शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और हकीम बलोच को फरीक बनाया गया है। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 237 में ज़िमनी इंतखाब के नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी रहनुमा हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज किया है। PTI के मरकजी रहनुमा अली जैदी ने दरख्वास्त दायर की है। PTI रहनुमा ने दरख्वास्त में कहा कि NA 237 में बदतरीन धांधली की गई, हल्के में PP कारकुनों ने जाली वोट डाले। अली जैदी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि हल्के में धांधली से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 7 रोज़ में बल्दियाती कानून बनाने का हुक्म दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर समाअत की, जिस दौरान स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बेंच को ब्रीफिंग दी, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी कमीशन में पेश हुए। स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को पंजाब की बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हुई। 14 अप्रैल 2022 को इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दिया। पंजाब हुकूमत ने भी अपने नए बल्दियाती इंतखाबात का ऑर्डिनेंस जारी किया है। ऑर्डिनेंस या उसके रूल्स हमसे शेयर नहीं किए गए। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा कि हम 2 मरतबा हल्का बंदी करवा चुके हैं, इस पर अखराजात हुए हैं। पंजाब हुकूमत से ये अखराजात वसूल किए जाएं। पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई की जाए। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत को बताया कि पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है, इसमें बल्दियाती ऑर्डिनेंस कानून बन जाएगा। अभी बस एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है जिस पर बहस हो रही है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दुनिया में EVM पर तहकीकात हुई हैं। सिर्फ 2 ममालिक ब्राज़ील और भारत EVM को इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राज़ील के नुमाइंदे ने हमें कहा था कि 2023 का इलेक्शन EVM पर कराना मुआवजा होगा। तहकीकात के मुताबिक अगर EVM को जल्दी में मुसल्लत किया गया तो इलेक्शन मशकूक हो जाएगा। अनारकी के फैलेगी, ये नहीं हो सकता कि हम शौक में EVM पर इलेक्शन कराएं और पूरे मुल्क में अनारकी फैले। पंजाब हुकूमत चाहती है कि अनारकी फैले। बल्दियाती इंतखाबात में तो पोलिंग स्टेशन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अब हम EVM के चक्कर में पड़ जाएं। EVM एक सियासी बयान हो सकता है। अगर इलेक्शन खराब हो जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। इमरान खान की अफसानवी कहानियां वक्ती तौर पर मशहूर हो रही हैं। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हमने कोई रिलीफ नहीं लिया, मरियम नवाज कानून के तहत बरी हुई हैं, मैं 2 साल से अदालतों में पेश हो रहा हूं। इलेक्शन करवा चुका है, मुझे कोई बताएगा ये अरबों खरबों रुपया कहां से आ रहा है? हमें तो कहा जाता था कि आपका लिबास जो है वो आपकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता, तो फिर इस वेले मुस्टंडे का कोई पूछेगा कि भाई ये अरबों खरबों रुपया कहां से आ रहा है, तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये मौला जट का रोल हिट तो हो रहा है। ये कोच के लिखे हुए डायलॉग जो हैं वो सुपर हिट तो हो रहे हैं। ये खिलाया जो जा रहा है, ये खेल तो अच्छा रहा है, हकीकत में ये रियासत के साथ खेल रहा है, जो आने वाले वक्तों में रियासती इदारों नहीं कौम को भी भुगतना पड़ेंगे। अगर हम आज भी रियासत के लिए, कौम के लिए
खामोश हैं तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि कोच खिलाता जाए और मौला जट बड़े बड़े डायलॉग बोलता जाए और वो सुपर हिट होते जाएं, अरबों खरबों रुपया लगाकर इलेक्शन चुराए जाते रहें और फिर कहा जाए ये पॉपुलर बहुत है। और अगर मौले जट को कोई पॉपुलर कहता है, ये अफसानवी कहानियां, ये अफसानवी किरदार अगर इसी तरह कोच अपनी जरूरत के लिए और अगर ये कहता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन के सरबराह से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट तक ये करे और कहे एंटी करप्शन से लेकर नैब के सरबराह तक ये लगाए और ये ख्वाहिश करे कि तमाम आईबी से लेकर तमाम एजेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस के तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस्लामाबाद के सेशन जज अतार रब्बानी ने केस की समाअत करते हुए मुल्जिमान राजा अरशद, नुमान खोकर और हाशिम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान से। जी आगाह कीजिएगा अरसलान। नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस के तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस्लामाबाद के सेशन जज अतार रब्बानी ने केस की समाअत करते हुए मुल्जिमान राजा अरशद, नुमान खोकर और हाशिम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस के तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस्लामाबाद के सेशन जज अतार रब्बानी ने केस की समाअत करते हुए मुल्जिमान राजा अरशद, नुमान खोकर और हाशिम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस के तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस्लामाबाद के सेशन जज अतार रब्बानी ने केस की समाअत करते हुए मुल्जिमान राजा अरशद, नुमान खोकर और हाशिम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बैरिस्टर फहद मलिक को 2016 में इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में कत्ल किया गया था और आज 6 साल के बाद इस केस का बड़ा और हतमी फैसला सामने आ गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतार रब्बानी ने तीनों मुल्जिमान को अदालत के अंदर पेश होने का हुक्म दिया था और आज अदालत ने अपना महफूज जो फैसला था वो सुनाते हुए फहद मलिक केस के अंदर तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और उन तीनों मुल्जिमान के अंदर राजा अरशद, नुमान खोकर और राजा हाशिम इस मुकदमे के अंदर नामजद थे और इस केस का मुख्तसर फैसला भी आ चुका है, जिसके मुताबिक इस तहरीरी फैसले के अंदर राजा अरशद, हाशिम और नुमान खोकर को कत्ल की दफा में उम्र कैद और 5-5 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई गई है। और तीनों मुल्जिमान को इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और दावा बोलने की दफात भी इसके अंदर शामिल है और तीनों मुल्जिमान को इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और दावा बोलने की दफात में 18 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ अदालत ने मुल्जिमान पर 1 लाख और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाने का हुक्म दिया है। और इस तहरीरी फैसले के मुताबिक इन तीनों मुल्जिमान का जो हतमी फैसला था वो आज हो चुका है और आज 6 साल के अरसे के बाद बैरिस्टर फहद मलिक के कत्ल केस का इस फैसले को जो है वो अदालत ने सुना दिया है और इस महफूज फैसले के मुताबिक इन तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। जी अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया। सानेहाय कार साथ दहशतगर्दी का बड़ा वाकया था। सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनी क़यादत के साथ मोहब्बत और अकीदत कम ही देखने को मिलती है। इस वाकये में 150 से ज्यादा अफराद शहीद और 500 से ज्यादा जख्मी हुए। कारकुन
इसी मकाम पर शहीद हुए थे 18 अक्टूबर 2007 को, और 500 से ज़्यादा कारकुनान हमारे जख्मी हुए थे। ये दहशतगर्दी का वाक़या दुनिया भर में किसी पुरअमन सियासी सरगर्मी पर होने वाला सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था, और इस वाक़े को हम कभी भुला नहीं सकते। वो दोस्त, हमारे वो भाई जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बड़ी खुशी के साथ इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे, और एक जश्न का समा था, लेकिन अचानक रात के वक्त एक दो धमाके होते हैं और वो हमारा जश्न जो है वो सोग में तब्दील हो जाता है। और वो हालात और सूरत हाल हमने देखी अपने आंखों से जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला किसी और को उस किस्म के वाक़यात देखने का मौका ना दे, क्योंकि इतनी तकलीफ दे वो सिचुएशंस थी जिसका हम लफ्ज़ों में इजहार नहीं कर सकते हैं। आज 18 अक्टूबर को हम तजदीद अहद करते हैं, हम उन शोहदा के ख़ानदानों के साथ तजदीद अहद करते हैं, उनको ये एहसास दिलाते हैं कि उनके बच्चों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जो अपनी जानें निसार की थी, निछावर की थी, हम उनको भूले नहीं हैं। वो हर वक्त हमें याद रहते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर तकरीब में जहाँ हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए दुआ करते हैं, वहाँ कारसाज के शहीदों के लिए दुआ होती है। तो ये सिलसिला 15 साल से जारी है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है इन शहीदों को हम नहीं भूलेंगे और इनको हमेशा याद रखेंगे। देखिए, एक तो इस मुल्क के हर शख्स को पता है कि सियासी जमातों में अगर किसी जमात के अंदर गुंडागर्दी का अंसर है तो वो PTI के अलावा कोई जमात नहीं है। अगर बदतमीजी किसी जमात के अंदर है तो वो PTI के अलावा कोई नहीं है। और अगर धांधली करने के माहिर हैं जो पकड़े गए रंगे हाथों, वो PTI के अलावा कोई नहीं है। वो डस्का हो या खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन हो, वहाँ पोलिंग स्टेशन के अंदर से पोलिंग जो बैलेट पेपर्स थे उनके डब्बे उठाते हुए इनके वुज़रा, इनके MPA MNS की फुटेज मौजूद है, ये भागे थे जब ये हार रहे थे। इन्होंने आग लगाई थी पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर जहाँ वो हार रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ एक मकाम जहाँ पर ये हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सानहाए कारसाज के बहादुर शोहदा को खिराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज बेनज़ीर भुट्टो और उनके हजारों जयालों के खून से जमहूरियत कायम है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कायद के मिशन की तकमील की और 73 के आइन को असल सूरत में बहाल किया, सवात में दोबारा कौमी परचम सरबलंद किया और सूबों को खुद मुख्तारी दी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी शनाख्त दी। मुस्तहिक खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए समरात में हिस्सादार बनाया। मुआशी और समाजी तौर पर कमजोर तबकात को मुआशी और समाजी इंसाफ मुहैया होगा। बेनज़ीर भुट्टो की जदोजहद को पाया तकमील तक पहुँचा कर इख्तियारात पार्लियामान को वापस दिलवाए। आज मुल्क का पसमानदा इलाका थर कोयले से बिजली पैदा कर रहा है। साबिक सदर ने कहा कि हम सानहाए कारसाज के बहादुर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। कौमी दायरा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 7,597 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। NIH की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,597 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 32 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.42% रही है। मजीद बरआं इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 40 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन गाबा स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की, जिसमें कौमी टीम ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर सख्त मेहनत की। इस वक्त हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नवीद मलिक ऑस्ट्रेलिया में शहर ब्रिस्बेन में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी नवीद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गाबा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने भरपूर और अच्छी जो प्रैक्टिस की है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच हार चुकी थी, जो अब अपना जो पहला मैच था वार्म अप मैच, अब दूसरा मैच है पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी और उसके बाद जो 23 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहला जो T20 जो वर्ल्ड कप का मैच है वो खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। तो पाकिस्तान की अगर बात करें कारकर्दगी के हवाले से, तो पीसीबी के जो इंतज़ामिया वो काफ़ी नाराज़ दिखाई देती हैं। पाकिस्तान ने आज बड़े भरपूर अंदाज से प्रैक्टिस की है गुज़श्ता मैच में। अब ये देखते हैं कि जो आने वाला अफगानिस्तान के जो खिलाफ दूसरा मैच है वार्म अप मैच, उसमें पाकिस्तान कैसी कारकर्दगी। नवीद मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले लिया है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बैतुल मुक़द्दस के तनाज़ा का हल पुरअमन तरीके और बातचीत के साथ होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी विंग की तर्जुमान का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया बैतुल मुक़द्दस की हैसियत को किसी भी अमन मुज़ाकरात के हिस्से के तौर पर हल करने के मामले पर मुसलसल गौर करेगा। रूसी एयरफोर्स का जेट तैयारा रिहायशी इमारत से टकरा गया। हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। पायलट महफूज रहा। हादसा रूस के शहर में पेश आया। तैयारा टकराने के बाद 4 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि लड़ाका तैयारे के इंजन में आग लगने से हादसा पेश आया है। हादसे से पहले पायलट तैयारे से निकलने में कामयाब हो गए। तैयारा टकराने के बाद रिहायशी इमारत समेत आसपास की इमारतों को आग लग गई है। Su-34 सुपरसोनिक बमबारा तैयारा तबीयती मिशन पर था। हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के मैच से 5 दिन पहले दोनों मुल्कों के क्रिकेट शायकीन का टाकरा शुरू हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर स्क्वाड में शामिल फास्ट बॉलर्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो भारत के मदाहों को कुछ खास पसंद न आई। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की तस्वीर पर तनकीद करने वाले भारतीय अकाउंट्स को पाकिस्तानी सार्फिन ने भरपूर जवाब दिया। एक भारतीय खातून के अकाउंट से पाकिस्तानी बॉलर को छक्के लगाते हुए ऑस्ट्रेलियाई बैटर की मुख्तसर वीडियो शेयर की गई, जबकि एक शख्स ने लिखा कि सिर्फ हारिस बेहतरीन है, बाकी बॉलर्स रन देते हैं। एक और भारतीय अकाउंट से लिखा गया कि कल इंग्लैंड ने पाकिस्तान की बैटरी फ्यूज कर दी थी। भारतीय तनकीद का पाकिस्तानियों ने भरपूर जवाब दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।